Can you just stop the screen share just once? Yeah, a very good afternoon to all of you. So happy to see so many of us join in spite of the, like the cyclone or whatever is about to come. But still, I'm so happy that nothing can stop us from making our life magical. And I'm so happy to see you all. A very, very good afternoon to all of you. And before we start today's session, can I ask, कल जो हम लोगों ने अपने बॉडी के साथ जो एक्सरसाइज की, उससे किसी would anyone like to share their experience? किसने किया पहली बार? I could see Yashi is very nice. Yashi had put up a very nice post. Who else could do it? Navya Malika, can you put on your video? And Anya, can you put on your video? Yes. Hi, Smita ma'am. Hi, Kanika. Yeah, I also did it. Yes. Would you like to share your experience? Yes, so it was nice. Yeah, so I would just like to say that it was something different. Like we don't really thank for what we have. So, and when you see it time and again, that is the time when you realize कि हाँ मतलब इसे भी thank करना चाहिए था ऐसा. So that was a very good experience overall. But I think it will take more time to really get into it. It's not that easy as we are thinking. So was there any particular body part that you were thanking, or any pain that you experienced? Anything in particular? No, nothing in particular. But under lockdown, it's like you're constantly sitting. So that is why you experience a lot of stiffness in the body. Okay. So that is what I was trying to, relieve in one way. Very nice, very nice. One thing I can suggest you in lockdown that you can do to relieve your stiffness, we have started this pentathlon program. So every morning on Zoom, we are all walking together. Okay. And you won't believe, 1 घंटे में we walk up more than 5,000 steps. Oh, so wow. You must join us for that to make a brilliant start for your morning. And all Sure. of you, it's going to be very nice if early morning, even whether lockdown or not, I think we have to keep our body moving. क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ना, it's like a machine. जैसे कोई भी फैक्ट्री में कोई मशीन होती है, अगर आप उसको चलाएंगे नहीं और कुछ दिनों के लिए बंद रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा. वैसे ही हमारा ये शरीर है. हम लोग इसको जितना चलाएंगे उतना बेहतर ये काम करेगा. जब हम लोग इसको बंद कर देंगे ना, इसको काम में लाना, तब आप देखेंगे कि हमारी सारी बीमारियां चालू हो जाएंगी. So it's very, very important to really take care of our health. Health is of utmost importance. Health है तो wealth है और everything else है. सांस है तो आस है, वही चीज है. So we all need to really take care of our health. So please I would request कि सब लोग, आप लोग अपने हेल्थ को बहुत सीरियसली लें. And even if you are at home, do as much walking. तो घर में कर ही सकते हैं ना. पूरे दिन में रूम से रूम हुआ. हम लोग तो एक जगह खड़े होकर ही वॉक करते हैं. We don't even move around, but like okay. It's wonderful. Like if you one day, I would like to share the link with you. आप एक दिन आकर देखिए, and you will love it. You will seriously love it. Okay. Because see, walking is very basic, but at least उतना तो अपने करें. और तो भी कुछ नहीं भी कर पा रहे तो प्लीज उतना बेसिक तो करें. तो ये बहुत जरूरी है. बिकॉज उसी से फिर हम लोगों का हेल्थ अपने आप ठीक हो जाए. अगर शरीर चलता रहेगा ना तो सब चलेगा. आई विल टेल यू, देयर इज अ विलेज कॉल्ड ओकिनावा इन जापान, और वहां पे इट्स लाइक मोस्टली एवरीवन लिव्स अबव 90 इयर्स. तो उनका एक मेजर उन लोगों का चीज था कि उन लोग दे वर सो like they used to take their health so seriously. So it was a town village kind of way, and you will find like most rich people there. ऐसा नहीं है कि सब it's a normal village, but वहाँ पे लोगों की longevity का सब लोगों ने राज पता करना चाहा. तो पता चला कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो लोग सब लोग वॉकिंग और साइकिलिंग बहुत करते हैं. वहाँ पे सिटी में ये लोग कार्स है ही नहीं किसी के पास. They walk, they cycle, they grow their own organic food, and they eat that. So, like we really need to go back to our roots.
जितना सिंपलिसिटी हम लोग जिएंगे और अपने शरीर को चलाते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है. सही बात है. Thank you so much. Yeah, so I think now on this note, let us start today's chapter. Today on day 5, let us, we have worked on our relationships. We have started working on our health. So today, let's see what is the magic we are going to create in our life. Over to you, Ashvika. And Shalini, can I please request you to do the reading once again for us? Thank you so much. Okay, I'll just share my. Yeah. So today's chapter is day 5, magic money. How you can Ashvika, can I just start? Like, this is an amazing topic. So can you stop this share? Okay. Yes, like today's topic is very important and very interesting. किस-किस को यहाँ पे पैसा चाहिए? मनी किसको चाहिए? Just raise your hands. किसी को नहीं चाहिए? विश्वता जी को पैसे नहीं चाहिए? यशस्विनी को पैसे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए. See, दुनिया, wow, मेरे को बहुत सारा चाहिए. This is the way. Actually, अगर आपको मैजिक देखना है और if you really want money, coming here, ऐसे ही हाथ करो, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके मांगो, तब मिलेगा. And trust me, money is magic. Money is actually magic. क्योंकि ये पूरी सृष्टि, like अब तो मनी हम लोग पेपर फॉर्म में देख रहे हैं. अगर if you take in the form की money means giving and receiving, medium of giving and receiving. ये सृष्टि का जो शुरुआत हुई है ना, उसकी शुरुआत ही हुई है लेन देन से. तो ये जो आज के दिन जो मनी है, इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ दैट. तो ये बहुत जरूरी है. अगर ये लेन देन बंद हो जाए ना, आप देखेंगे सब जगह एकदम शांति हो जाएगी, पूरी सृष्टि में एकदम कुछ हलचल ही नहीं होगी. और यही है जो पूरी सृष्टि को इतना सृष्टि माया से गिरी हुई है, माया उसे चलाती है. तो ये फैक्ट है, यही सृष्टि की ब्यूटी है. हम लोग जो इस प्लैनेट पर आए हैं, इस माया नगरी को एक्सपीरियंस करने ही आए हैं. तो ये जो माया है, यही ये पूरी सृष्टि चला रही है. और सबसे खास बात ये है कि ये जो माया है, जो हमें बाहर दिखती है, ये हम लोगों के ही अंदर है. हम लोग ही, we are the creators of this universe. We are the creators of this magic money that we want. And we want, we can see all around us. तो ये जो want है ना, इसकी जगह हम लोगों को we will have to come into the mode of feeling that we have it inside us. मेरे पास भरपूर है, भरमार है. हम लोग तो खुद लक्ष्मी रूप हैं. तो हम लोगों को ये बाहर क्यों ढूंढने की दरकार है? We all are संपन्न. ये हम लोगों को फील करने की दरकार है. And today that is the magic mantra that we are going to learn and read. And trust me, ये जो मैजिक बुक्स है, ये जो बुक है, ये तो फॉरेनर्स ने लिखी है. पर if we go back to our roots, हम लोगों को तो ये सब पढ़ने की दरकार ही नहीं है. We are born with it. ये संस्कार हमारे अंदर हैं कि हम लोग जब पैदा होते हैं, तभी हर लड़की को लक्ष्मी का रूप बोला जाता है. क्योंकि every girl, she is the procreator. She creates. She can create anything. इसीलिए उन्हें लक्ष्मी का रूप बोला जाता है. और लक्ष्मी से ही सब पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है. So that is the feeling that we need to understand and we need to experience and live with. That yes, मनी आपको बाहर नहीं चाहिए, मनी आपके पास है, भरपूर है, सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करना है. So that is on this beautiful note, let us see what Rhonda has to say for money and let us experience that as well. Yes, thank you, Ashvika. So now we can start. Okay. Okay, so day 5, magic money. Okay, so you've already got a great introduction by Smita aunty that कैसे magic होता है money में and what all we need to do. And this is really a very interesting chapter. Like if you want to experiment कि actually magic होता है कि नहीं, बाकी सब चीजों में तो you'll take a bit time, but इस चीज में you can really start working on it and you'll see the result like very soon.
Yeah, so who will read today? Yeah, I'll read. Okay. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science. Okay, so जितना आप gratitude करोगे उतना you will become rich. Gratitude is the other word for richness, right? Gratitude like and richness they go hand in hand. आप जितना gratitude करोगे जो भी आपके पास अभी है जितना भी है आपको आगे और मिलेगा, पर आपके पास जितना भी है आप उसको लेके दिन भर कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे पास इतना कम है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो और भी ज्यादा पॉवर्टी में कन्वर्ट होते रहेगा आपके लिए. तो gratitude is riches and complaint is always poverty. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. तो अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है that if you have the lack of money in your life, आपको जितना चाहिए उतना आपके पास अभी मनी नहीं है लाइफ में, तो आपको ये बात समझना होगा कि आप उसके लिए दिन भर बैठ के सिर्फ चिंता करोगे या बहुत जेलस होगे दूसरे लोगों से जिनके पास आपसे ज्यादा है, या डिसअपॉइंटमेंट होगा आपको खुद के लाइफ पे डाउट होगा, आपको डर लगा रहेगा कि मेरे पास कभी पैसा आ ही नहीं सकता है जितना मुझे चाहिए, तो हमेशा आपके पास लैक ही रहेगा, क्योंकि आप हमेशा उसके नेगेटिव ही देख रहे हो कि आपके पास कितना नहीं है, आप ये नहीं देख रहे हो आपके पास अभी कितना है. बिकॉज many people dream of living a life what you have right now. आपको और ऊंचा लाइफ चाहिए, that's fine, but आपसे भी और गरीब लोग हैं जिनको आपका जैसा लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. So be grateful कि आपके पास अभी उतना तो है. Someone is looking up to your life and you are keep on criticizing your life. So that's not good, right? आपके पास जितना अभी है, it's okay to want more, but आपके पास अभी जितना है उसके लिए आप एटलीस्ट ग्रेटफुल हो, एंड साथ ही साथ आप आगे और कमाने के लिए और मनी लाने के लिए अपने लाइफ में you work on it, but don't criticize what you have right now. कंप्लेनिंग अबाउट मनी या फिर आर्ग्यूइंग कि नहीं मेरे पास तो कमी है, मेरे पास ज्यादा है ही नहीं, या फ्रस्ट्रेट हो जाना कि आप कभी कुछ खरीद नहीं पा रहे हो या कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है. सो वो सब ग्रैटिट्यूड का एक्ट्स नहीं होता है, दैट इज एक्ट्स ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, क्रिटिसाइजिंग योर लाइफ एंड द मनी यू हैव नाउ. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये सब करने से आपका मनी और बढ़ जाएगा, चिंता करने से, जेलस फील होने से, सो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. यू ट्राई इट, वो और भी खराब हो जाएगा, या अगर खराब भी नहीं होगा तो आप वहीं पे अटके रह जाओगे, आप आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे अगर आप इतना नेगेटिविटी देखोगे अपने लाइफ में, राइट? सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मनी, इम्प्रूव योर लाइफ, जो भी आपका अचीव है फाइनेंशियल एरिया में उसको इम्प्रूव करने के लिए यू ऑलवेज नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. नो मैटर अभी आपका सिचुएशन कितना गंदा है या कितना अच्छा है, सबको और आगे बढ़ना होता है, राइट? तो और आगे बढ़ने के लिए आपको अभी वाला सिचुएशन को और ज्यादा खराब नहीं करना है, आपको उसको और अच्छा करना है. या हेलो, Shalini ma'am, can we continue reading? No, let me read. From where shall I start? No matter. Okay. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Okay, so
like I said before, no matter अभी आप किस point of time पे हो, आपका situation क्या है अभी life में, that doesn't really matter of at all. ठीक है, अगर आपके पास अभी 2 रुपया भी है ना, तो if you feel grateful for that 2 rupees also, आगे आपको और 200 मिलेगा, 2000, 2 lakhs, it will keep on increasing. By practicing gratitude, आपका कभी भी कुछ भी खराब नहीं होगा लाइफ में, ठीक है. But if you don't practice gratitude and if you criticize people, yourself, your money, your life, आप उसको criticize करते रहोगे, बुला बड़ा बोलते रहोगे, तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ खराब होगा, या फिर आप उधर ही अटके रहोगे, या तो आपका सिचुएशन और वर्स हो जाएगा. आई कैन गारंटी यू, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपको रिजल्ट नहीं भी दिख रहा है थोड़े टाइम में, तो लॉन्ग टर्म में तो दिखेगा ही आपको, और उस टाइम पे भी आपका सिचुएशन वर्स नहीं होगा, वो इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इम्प्रूव, राइट. तो नो मैटर आप अभी किस सिचुएशन में, आपके पास कितना मनी है, आपके पास इनफ मनी नहीं है, दैट डजंट मैटर. पर अगर आप अनग्रेटफुल होगे तो आपका सिचुएशन वर्स हो जाएगा. पर अगर आप ग्रेटफुल होगे फॉर द मनी यू हैव इन योर लाइफ, इट विल ऑब्वियसली मैजिकली इंक्रीज. कुछ लोगों का जल्दी इंक्रीज हो जाता है, कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ा टाइम लगता है. सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ऐसा नहीं आप 1-2 वीक्स किए, आपको रिजल्ट नहीं दिखा तो आप छोड़ दोगे, राइट. तो आप जब तक आपको अपना गोल नहीं मिलता है, सपोज मेरा कोई गोल है लाइफ में, कुछ करियर है मेरा, तो जब तक मेरे को वो करियर उस पोजीशन पे आई वोंट रीच, ऑब्वियसली आई वोंट स्टॉप, राइट. तो इसमें भी सेम केस है, जब तक आपको अपना डिजायर्ड मनी या फिर जो भी हेल्थ एंड ऑल नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. और एक बार जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा एक फील्ड में, तो आई एम श्योर कि आपको उसके बाद इसको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा. बट जब तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, यू नीड टू बी रियली पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट विद दिस प्रैक्टिस. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. So whoever does this practice of gratitude with a lot of feelings, right from the core of their heart, and who believes in this, and सबसे बड़ा बात होता है faith, right? हम एक मूर्ति में क्यों मानते हैं, उसमें असली के भगवान तो होते नहीं है, पर इंडिया में कहीं पे भी आप पत्थर लगा दो, उस पे टीका लगा दो, लोग उसको मानने लग जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे हैव फेथ इन गॉड, उनको उसी मूर्ति में फेथ है, राइट. तो आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको फेथ होना चाहिए इस चीज पे कि हाँ, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग इट, इफ आई एम डिवोटिंग माई टाइम टू ग्रैटिट्यूड, श्योरली आई विल गेट अ रिजल्ट. नॉट नाउ, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, बट कभी ना कभी आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ व्हाट आई वांट. तो whoever does this gratitude thing, आप जब भगवान से भी कुछ मांगते हो, तो भगवान आपको तुरंत थोड़ी दे देते, टाइम आने पे आपको मिलता है ना वो सब चीज. सो इट्स द सेम थिंग विद ग्रैटिट्यूड. आप प्रैक्टिस करते रहो, आप इसमें फेथ रखो, एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स, यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल बी गिवन इन अबंडेंस. आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे को कभी इतना मिल सकता था. एंड इफ यू डोंट प्रैक्टिस दिस ग्रैटिट्यूड, इफ यू गो ऑन द नेगेटिव पाथ ऑफ लाइफ, जो अभी आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा. सो डोंट एवर गो ऑन द नेगेटिव पाथ ऑफ लाइफ, हमेशा पॉजिटिव पाथ पे रहो एंड हैव फेथ. ठीक है, किसी भी चीज में फेथ होना इज वेरी इम्पोर्टेंट. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत कम पैसे है, मैं इतने से पैसे से ग्रैटिट्यूड होके क्या करूंगी, इतना सा पैसा से क्या होता है आजकल, क्या मतलब इसके लिए तो कुछ भी थैंकफुल होने का नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपके पास जो भी है, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, तो वो और like doing something good and waiting for the result is better than making your situation worse, right? तो आपके पास जितना भी है, you need to understand this is a fact, this is not just magic, this is a fact also. अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, अगर आप उस चीज के लिए थैंकफुल नहीं होगे, तो जो है आपके पास वो भी छीन लिया जाएगा आपसे.
But when you be patient, be consistent and keep practicing this, आपके पास और आएगा. Maybe आज कल परसों नहीं आए, but you need to be grateful. और एक बार जब आपके पास आना शुरू हो जाएगी ना, I'm sure it will inspire you even more, right? एक बार हमें किसी चीज का रिजल्ट दिखता है तो हम उसमें और मेहनत करने लग जाते हैं ताकि हमें और अच्छा रिजल्ट मिले. तो जस्ट बी पेशेंट फॉर दैट वन लिटिल रे ऑफ रिजल्ट, एंड उसके बाद तो आई एम श्योर कि आपका हैबिट ही बन जाएगा या आपको अच्छा ही लगने लगेगा वो चीज करने में. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. So this chapter, the chapter of money, is very interesting. It gives result very quickly, but it is also a tricky one. You need to understand what is there in this chapter really well, like point by point आपको समझना होगा, because this is a very tricky chapter, especially जब आपके पास उतना enough money नहीं है. So it's very difficult to be thankful for that. तो आपको इसका एकदम deep reason समझना होगा. Why am I telling you to be thankful even for that little bit money that you have, right? तो आपको ये आपके लिए I know it's very difficult. Not everybody has what they wish in their life. तो अगर आपके पास जितना भी थोड़ा सा भी है, you need to understand कि उसके लिए भी आपको क्यों grateful होना है. Why do you need to thank that छोटा सा amount of money also? So there are 2 steps to the magic money practice. Magical आपका money को magic में create करने के लिए there are 2 steps. Its importance is that you read. आप इस magic money का जो practice है, it's important that we read it in the morning, in the beginning of the day, because ये जो practice है ना आपका, ये पूरा दिन चलेगा. ये जो money का practice है आपका, this will keep on going on throughout your day. So it is very important to understand it properly and read it in the beginning of your day. Yeah. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words "thank you" with all your heart for each instance. Did you always yeah. तो आपको क्या करना है? You need to sit down and you need to take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. तो आपको उसमें भी आपके पास अभी जितना है आप उससे satisfied नहीं हो, पर आपको उस टाइम के बारे में सोचना है जब आपके पास think about your childhood when you did not have that much money. Childhood में ठीक है, maybe our fathers or our family was very like rich or something, but that was not our money. We were not earning that money. We were not getting anything. We were just living on our fathers or our parents' money that they were that जो उन लोग कमा रहे थे, right? So we were living on that, right? तो आपको उस टाइम पे याद करना जब अगर आपको कुछ चाहिए होता था सामान, so obviously you had to ask your parents for the money. आप खुद से तो नहीं लेते थे, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता था. So in the same way, अभी you recall that memory where money, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, अभी आपके पास थोड़ा सा तो सेविंग्स होगी. अगर आप अर्न भी नहीं करते, इफ यू आर हाउस मेकर, तो अभी आपके पास कुछ तो सेविंग्स होगा पहले का, या आप कुछ भी करते हो घर बैठे भी थोड़ा बहुत, तो वो भी तो होगा ना आपके पास. So just think of that moment जब आपके पास कुछ भी नहीं था, like your childhood. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word "thank you" with all your heart. तो जब भी आपको बैठना है, ठीक है, take a few minutes and think back to in your childhood जब आपके पास उतना ज्यादा मनी नहीं था जितना आपके पास अभी है, right? So आपको ये करना है सबसे पहले. उसके बाद आपको हर एक मेमोरी को रिकॉल करना है where money was paid for you, जब आपके लिए पैसा, आपके ऊपर पैसा खर्च किया गया था. So you need to be thankful कि आपके ऊपर जो भी आज तक पैसा जिसने भी खर्च किया, आपने खुद ने भी किया या किसी और ने भी किया, so you need to really thank that from your heart with the magical words "thank you" कि thank you for the money that was paid for me, right? Yeah. Yeah. Did you always have food to eat? Did you live in a home
Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? तो आपको ये सब चीज, ये छोटे छोटे चीज जब आप बैठोगे आपको ये सब चीज याद करना है। क्या आपके पास कभी खाने के लिए था? क्या आपके पास घर था रहने के लिए? क्या आप अच्छे स्कूल में जाके आपको एजुकेशन मिला? आप स्कूल में कैसे ट्रैवल करते थे? साइकिल से, बस, ऑटो रिक्शा, गाड़ी में आप कैसे ट्रैवल करते थे? आपके पास बुक्स थे पढ़ने के लिए? आपको स्कूल में खाना मिलता था कि नहीं लंच टाइम पे? क्या आप बाहर कभी अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे जब आप छोटे थे? व्हाट वर दे, आपको अपने बर्थडे पे क्या क्या एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलते थे किस किस इंसान से? आपके पास टॉयज थे या पेट था या कोई बाइक था? या आपको बचपन में तो हम कितना जल्दी जल्दी हमारा बॉडी भरता है, तो जैसे जैसे आपका बॉडी भरता था क्या आपके पास पहनने के लिए कपड़े रहते थे एक साइज से दूसरे साइज के? क्या आप मूवीज जाते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, या आपका जो भी हॉबी था क्या आप वो पूरा कर पाए थे? जब आप बीमार पड़ते थे तो आपको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके मेडिसिन दिया जाता था कि नहीं? क्या आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे? डिड यू हैव एसेंशियल आइटम्स? क्या आपके पास जरूरत के सामान थे जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, एनीथिंग? आपके पास क्या गाड़ी था ट्रैवल करने के लिए? क्या आप टीवी देख सकते थे या आप फोन कॉल कर सकते थे? आप लाइट यूज कर सकते थे? सो यू नीड टू जस्ट सिट डाउन एंड थिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स अबाउट दीज थिंग्स। क्या आपके पास चाइल्डहुड में ये सब चीज अवेलेबल था कि आपका लाइफ बहुत ही हार्ड रहा है, या आपके पास ये सब चीज इजीली अवेलेबल था? सो यू नीड टू जस्ट टेक 2 minutes, सिट डाउन एंड जस्ट रिमेम्बर कि आपके पास क्या ये सब चीज था चाइल्डहुड में? Were you privileged with all these facilities that we talked about above? Okay. Yeah. All of these cost Yeah, money. we can move forward. Yeah. All of these cost money. All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you've received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. So जो भी चीजों के बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, क्या वो सब चीज के लिए पैसा लगता था? ऑब्वियसली पैसा लगता था। आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं वो सब चीज। ऑब्वियसली वो सब चीज खरीदने के लिए, वो सब चीज यूज करने के लिए आपके पेरेंट्स को या किसी को पैसा देना पड़ता था जहां से वो खरीदते थे। पर आपको वो बिना किसी चार्ज के मिलता था, आपको फ्री में मिलता था, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था। यू रिसीव देम ऑल विदाउट एनी चार्जेस, राइट? पर उसके दाम थे। in order to buy those things पैसा लगता था, पर आपको वो बस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। As you travel back through your memories, जैसे जैसे आप अपने बचपन के दिन को याद करते हो, as you remember the memories of your childhood, right? And your youth, your teenager time, okay? As you remember the memories and go back and just recall those memories of your childhood and your youth, आपको समझ आएगा कि you received equate to hard money. You realize how many things you receive that equate to hard money. तो आपको ये realize होगा कि जो जो सामान आपको मिलता था वो आपके पेरेंट्स के या जो भी आपके लिए पे करता था वो सब उनके हार्ड अर्न्ड मनी से आता था। वो भी कोई पेड़ से तोड़ के नहीं लाते थे, उनको भी वो हार्ड अर्न्ड मनी जो वो कमाते थे वो आपके ऊपर खर्चा करते थे, सो दैट यू हैव अ बेटर लाइफ, राइट? सो उस हर एक ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस के लिए, हर एक ऐसे छोटे छोटे मेमोरीज के लिए
टाइम पे आपके ऊपर खर्चा किया गया था, जिस टाइम पे यू रिसीव थिंग्स, यू रिसीव लग्जरीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उस टाइम को याद करके, एंड यू नीड टू फील सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी, फॉर द थिंग्स दैट यू रिसीव्ड इन योर पास्ट, राइट? इफ यू बीट, अगर आपके पास बचपन में सपोज एक गाड़ी था, राइट, पर आपके पास अभी गाड़ी नहीं है, that is because you kept criticizing your life after you got married or after you became an adult, right? तो आपको 2 मिनट बैठ के उस टाइम के बारे में याद करना है कि जब आपके पास गाड़ी था, राइट, आपको कितना अच्छा लगता था. You need to feel really thankful कि बचपन में आपके पास गाड़ी था. And when you feel thankful for those things, like it won't take so much time for you to take a decision from which you can go and buy a car, right? तो आपको उन moments को याद करना है जब आपके पास आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, और जो अभी आपके पास नहीं है. आपको उन मोमेंट्स को याद करके उनको सीरियसली ग्रैटिट्यूड पे करना है, ताकि जो मनी है वो फ्यूचर में भी आपका मैजिकली इंक्रीज हो जाए. आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, पर वर्क आप करोगे तो सपोज आपको 10 दिन में अपना सैलरी मिला, 10 दिन में आपको एक बोनस मिला, बट हार्ड वर्क के साथ व्हेन यू प्रैक्टिस मैजिक ऑल्सो, व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, you will receive the results even more faster, right? So and this thing is guaranteed by universal law. अगर आप यूनिवर्स से कोई चीज एकदम शिद्दत से मांगोगे, राइट, एंड अगर आप उसको रियली यू वांट दैट थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, एंड यू आर ऑल्सो थैंकफुल कि अभी तक आपको जो मिला आप उसके लिए थैंकफुल हो, एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग दैट यू रियली वांट फ्रॉम द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपका जरूर सुनेगी. इट विल नेवर लेट यू डाउन. It will always listen to you if you be thankful for whatever you've got before, right? Yeah. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic क्या करना है, आपको एक डॉलर बिल लेना है. डॉलर हमारे पास ऑब्वियसली सबके पास नहीं होगा, सो यू कैन टेक अ रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, एनीथिंग दैट यू लाइक. यू हैव टू टेक अ नोट एंड ऑन अ स्टिकर आपको उस पे लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. इस पॉइंट तक, इस एज तक आपको जो भी मनी मिला है, यू आर रियली थैंकफुल फॉर इट. उसको एक स्टिकर पे लिख के आपको उस एक नोट पे, कोई भी नोट हो, आपको इस नोट पे चिपकाना है. यू कैन, आई वुड प्रेफर दैट यू कैन डू इट ऑन द 100 रुपी नोट जो अभी नया वाला है, बिकॉज यू नो द 100 नोट इज पर्पल, एंड पर्पल इज द वेरी लकी कलर फॉर मनी. पर्पल को हम मनी करने के लिए बहुत ही लकी कलर मानते हैं फॉर द मनी, फॉर द फाइनेंशियल थिंग. ओके, सो अगर पॉसिबल हो तो आप उस पे स्टिकर पे ये कोट लिख के आप 100 रुपीज पे चिपका सकते हो. इफ नॉट देन आप किसी और चीज पे भी चिपका सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. Okay, take your magic dollar bill with your with you today and put it in your wallet, purse or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. तो आपको क्या करना है, जो मैजिक मनी डॉलर बिल आपने बनाया है ना, आज आप जो बनाओगे मैजिक डॉलर मनी बिल, आपको उसको अपने वॉलेट, पर्स, पॉकेट, आप कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि वो सेफली रहेगा. और एटलीस्ट एक बार मॉर्निंग में, एक बार आफ्टरनून में आपको उसको निकाल के अपने हैंड्स में होल्ड करना है. मिनिमम आपको एक बार मॉर्निंग और एक बार आफ्टरनून में निकालना है. ऐसे अगर आपको जितना बार टाइम मिले, जितना बार आपका मन करे एक दिन में आप कर सकते हो, पर 2 बार तो करना ही है. दैट इज वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून. ठीक है, यू हैव टू टेक आउट दैट मैजिक डॉलर बिल एंड यू नीड टू होल्ड इट इन योर हैंड्स. आपको अपने हाथ में उस मैजिक बिल को होल्ड करना है एंड यू हैव टू रीड द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन ऑन इट. जो वर्ड्स आपने उस मैजिक बिल पे लिखा है
आपको उसको रीड करना है अलाउड, एंड यू हैव टू बी ट्रूली, जैसे जैसे आप एक एक वर्ड रीड करोगे ना उस फ्रेज का, आपको ट्रूली ग्रेटफुल होना है कि अभी आपके पास जितना मनी है, अभी आपके पास जितना अबंडेंस ऑफ मनी है, उसके लिए आप, और पहले भी आपको जितना मिला है लाइफ में मनी, आप उसके लिए ट्रूली ग्रेटफुल हो. So with each word that you read of that phrase, you need to be really grateful for the money you have received till now and what you have today. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change. तो आप जितना सिंसियरली डेली करोगे, जितना सिंसियरली आप बोलोगे, जितना फील करके बोलोगे, उतना जल्दी आपको मिरेकल्स दिखेगा अपने लाइफ में, उतना जल्दी आपको अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे अपने लाइफ में. इन द केस ऑफ मनी, इन योर फाइनेंशियल एरिया, आपको और मिरेकल्स और चेंजेस दिखेंगे, राइट? सपोज आप अभी काम नहीं करते, इफ यू आर एन हाउसवाइफ और समथिंग, तो मे बी आपको आपके लाइफ में कैसे मिराकल्स हो सकता है मनी को लेके, द अमाउंट योर हस्बैंड इज अर्निंग, राइट? तो वो ज्यादा हो सकता है, एंड यू कैन गेट मोर फ्रॉम योर हस्बैंड, राइट? तो वैसे आपको और मनी मिल सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ आप अभी कमाई रहे हो. इफ यू आर अ किड, आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, सो यू गेट द पॉकेट मनी अकॉर्डिंग टू योर फादर्स अर्निंग, राइट? तो आपको, अगर आपको फादर का अर्निंग और इंक्रीज हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट मोर पॉकेट मनी, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू परचेज इवन मोर थिंग्स दैट यू वांट. सो इट्स नॉट दैट कि अभी आप पैसा नहीं कमाते हो तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको ये मनी कहीं से भी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. यू जस्ट नीड टू बिलीव इन इट एंड प्रैक्टिस दिस. ओके, You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ओके. तो आपको, जैसे मैंने अभी बोला था पहले, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको आगे टाइम में कैसे मनी मिला, कैसे आपका मनी इंक्रीज हुआ. जरूरी नहीं है कि आपको कैश ही मिलेगा. यू कैन गेट डिस्काउंट ऑन द थिंग्स दैट यू वांट टू बाय. आपको किसी से ऐसी गिफ्ट के तौर पे एक अनएक्सपेक्टेड कैश मिल सकता है या चेक मिल सकता है. आपको डिक्रीज इन कॉस्ट मिल सकता है. सपोज आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, आपको उसी दिन डिस्काउंट मिल सकता है बहुत ज्यादा. आपको कुछ कपड़े चाहिए तो वो आपको लाइक 50%, 60% डिस्काउंट में मिल सकता है. तो मनी कैन इंक्रीज एंड हेल्प यू इन एनी फॉर्म ऑफ योर लाइफ. आई एम नॉट सेइंग इट स्पेसिफिकली. अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपके हाथ में कैश ही आएगा. आपके में कैश भी आ सकता है इफ यू आर अर्निंग, राइट? आपको कोई बोनस भी मिल सकता है, आपका सैलरी भी इंक्रीज हो सकता है. आप जो सामान खरीदने चाह रहे हो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है. आपको ऐसी कोई सामान जो चाहिए था, आपको उसको फ्री में भी मिल सकता है, जैसे आपको गिफ्ट के तौर पे वो मिल सकता है. सो इट कैन हैपन इन एनी वे, ठीक है? पर आपको जो भी चाहिए, आपको उस फील्ड में, यू डोंट हैव टू पे मनी, और यू विल गेट अ बोनस और समथिंग इन रिगार्डिंग कैश और चेक. ओके, Yeah. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. तो आज जब आप वो मैजिक डॉलर बिल बना लोगे, उसके बाद आपको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे वो थोड़ा सेफ भी रहे और आप डेली उसको देख भी पाओ. सपोज यू कैन स्टिक इट ऑन द वॉल्स इनसाइड योर अलमीरा तो हम डेली खोलते कपड़े निकालने के लिए, तो आप उधर स्टिक कर सकते हो, या आप अपने रूम में कहीं पे रख सकते हो, राइट? तो आपको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे वो सेफ भी हो और आप वहां पे डेली देख भी पाओ उस मनी को, ठीक है? सो दैट यू आर रिमाइंडेड कि अभी तक आप अपने लाइफ में कितना ग्रेटफुल हो उस मनी के लिए, एंड आपके पास और अबंडेंस ऑफ मनी आता जाए आगे, ठीक है? And never forgetting that more times you look at your bill and more gratitude you feel for money you have given, the more magic you can bring. तो आपको ये चीज नहीं भूलना. अगर मैंने बोला कि आप एक बार मॉर्निंग और एक बार आफ्टरनून में पढ़ सकते हो, दैट्स रियली ग्रेट. पर अगर आप जितना बार उस मनी को बस देखोगे भी ना, तो भी आपके, अगर आप मुंह से भी नहीं बोलोगे ना, तो भी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि या आई एम फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी आई हैव गॉट,
ठीक है। तो अगर मैं अपने फोन को जितना बार भी देखती हूँ, इट क्लिक्स इन माई माइंड कि हाँ किसी का मैसेज तो नहीं आया है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आया है, वैसे ही व्हेन यू सी दिस मैजिक डॉलर बिल एवरी टाइम दैट इज पॉसिबल फॉर यू ना, यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ द ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। एंड जितना बार आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जितना बार आप ग्रैटिट्यूड बोलोगे, और जल्दी और ज्यादा मैजिक आप अपने लाइफ में ला पाओगे, ठीक है। सो अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू अबंडेंस ऑफ मनी। आप जितना अबंडेंस रखोगे ग्रैटिट्यूड का अपने लाइफ में, उतना ही अबंडेंस आपको मनी का मिलेगा अपने लाइफ में। अगर आप 1% ग्रैटिट्यूड रख रहे हो तो आपको उतना ही मनी मिलेगा। अगर आप 100% ग्रैटिट्यूड रख रहे हो तो आपको 100% मनी मिलेगा आगे। If you find yourself in a situation where you're about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. तो सपोज आप ये ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, आपने आज से शुरू कर दिया है ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस, पर कभी अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपने मनी को लेके अपने लाइफ में कुछ बोल दिया गलत, या आपको दिमाग में कुछ थॉट्स आ गया, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गया इन योर फाइनेंशियल फील्ड, राइट, तो आपको उसको तुरंत कट डाउन करना है। आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो ही सकता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट, एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी हैव नॉट बिकम प्रो एट इट, वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस। तो अगर बाय चांस आपको कभी ऐसा कोई कंप्लेंट वाला थॉट आता है, कोई नेगेटिव थॉट आता है, या गलती से आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज टॉपिक्स विच वी हैव डन टिल नाउ, तो आप जल्दी से, जैसे ही आप वो बोलोगे ना, आप उसके बारे में और सोचो मत, जल्दी से उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोई और दूसरे 10 ब्लेसिंग्स के बारे में सोच लो अपने लाइफ में और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दो। तो जो आपने एक कंप्लेंट किया है ना, वो आपका 10 ब्लेसिंग से कट ऑफ हो जाएगा, फिर दैट वोंट काउंट, ठीक है। पर आप उस कंप्लेंट के बारे में अगर सोचते रहोगे कि हाँ ऐसे है वैसे, ऐसे है वैसे, तो यू कांट बी एबल टू स्टॉप योर थॉट्स ऑल्सो, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर आपने अभी तक जो प्रैक्टिस किया है ना, वो या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा आपकी लाइफ में। फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ गुड हेल्थ, जो भी जिस चीज के बारे में भी आप करोगे ना, वो या तो एकदम बंद हो जाएगा और या तो उसका फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट, या फिर अगर आप अपने मुंह से कुछ बोलो, एक बार बस अपने दिमाग में सोच लो कि इस एक कंप्लेंट के वजह से क्या मैं इसका प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ? एम आई रेडी इन माई लाइफ टू लेट दीज नेगेटिव थॉट्स एंटर इन माई माइंड? क्या मैं रेडी हूँ? इफ आई एम नॉट, वो ऑटो, अगर आपका आंसर आपके मन में भी हुआ कि आई एम नॉट रेडी टू पे द प्राइस, तो वो थॉट अपने आप चला जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सो जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन वंस टू योरसेल्फ, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट? इस एक छोटी सी चीज के लिए जो मैं बस बोलना चाह रही हूँ, क्या ये चीज का जो प्राइस आएगा मेरे लाइफ में, द सिचुएशन when it will get worse, am I ready for that situation or am I willing to take that risk? ठीक है? Okay. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you just received. तो आज से आपको अभी से इनफैक्ट क्या अपने आप को एक प्रॉमिस करना है कि जब भी आपको कोई मनी मिलेगा, इवन इफ इट्स इन द फॉर्म ऑफ एनी गिफ्ट, कोई डिस्काउंट मिला, या किसी ने आपको कोई, जैसे फेस्टिवल्स पे हम मनी देते हैं एक दूसरे को, एनवेलप्स एक्सचेंज करते हैं, राइट, तो वो आपको कुछ मिला या आपको सैलरी मिला, कुछ भी आपको मिला, आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होगे। जैसे सपोज किड्स को अगर पॉकेट मनी मिल रहा है उनके पेरेंट्स से, या फिर ऐसी कुछ भी चीज, सपोज उनको कोई चॉकलेट्स खाना है तो उसके लिए देयर पेरेंट्स आर गिविंग देम मनी, और अगर आप लोग को सपोज आपके हस्बैंड घर चलाने का खर्चा दे रहे या ऐसा कुछ दे रहे, सो एवरीथिंग, मे बी वो आपको किसी और चीज के लिए मनी पे करना होगा बाद में, पर जब आप वो मनी को रिसीव कर रहे हो ना, सपोज आई गेट 1,000 रुपीज टुडे फॉर गेटिंग सम न्यू बुक्स, राइट,
तो अगर मेरे को वो आई नो कि मैं किसी और को वो पैसा देने वाली हूँ व्हेन आई कलेक्ट द थिंग फ्रॉम देम, पर जिस मोमेंट पे आई एम गेटिंग द मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स और हुएवर आई एम गेटिंग द मनी फ्रॉम, उस मोमेंट पे आई नीड टू बी रियली ग्रेटफुल कि समवन इज गिविंग मी मनी एट दैट पॉइंट, right? And I'm really grateful that I have someone in my life who is ready to pay for my things, who is ready to fulfill my needs by giving money to me. Okay, so आपको उन छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत थैंकफुल होना है. हर एक circumstance, each of this circumstance means that you have received money, and in each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by just being grateful for what you have received, right? तो आपको जो डॉलर बिल है उसको तो देखोगे ही, पर जनरली इन रियल लाइफ ऑल्सो आपको जो भी मनी मिल रहा है दूसरों से, अपने पेरेंट्स से, अपने किड्स से, अपने हस्बैंड से, किसी से भी आपको जो जिस भी टाइप का मनी मिल रहा है, आगे वो खर्चा होगा, दैट्स फाइन, पर उस पॉइंट पे जब भी आपको किसी से मनी मिल रहा है तो आप रियल लाइफ में ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो. मनी डॉलर वाला बिल तो इट्स जस्ट इन दिस बुक, ठीक है, आपको वो भी प्रैक्टिस करना है, पर रियल लाइफ में भी टू बी मोर रियलिस्टिक, आपको जब भी कुछ पैसा मिले किसी भी इंसान से या किसी के भी थ्रू मिले, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है, ताकि आप अपने लाइफ में और पैसे मल्टीप्लाई कर पाओ. दैन द थिंग, अगर आपको आज 1000 रुपीज मिला है किसी से एज अ गिफ्ट, तो अगर आप उसको रियली बहुत ज्यादा मैजिक डाल रहे हो उस मनी में, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो क्या पता अगली बार वो पर्सन आपको 2000 दे एज अ गिफ्ट, राइट? तो आपको हर एक छोटे चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है. Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Step 2. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Step 3. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each thing. Step 4. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. Step 5. Take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. Step 6. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you've been given in your life. Step 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Okay. So I'll just recall everything that we've done till date. First, you have to count your blessings every day. Write any 10 blessings when you get up in the morning. You should write the reason for it, why you are grateful. And you should say and after you have written all those things, you should read your list and say thank you, thank you, thank you after each one blessing. Then you should sit down, take a few minutes to go back through your childhood, think what luxuries you were provided in your childhood without any charge taken from you. And as you recall each memory for which your parents paid for you for the things that you got for free, okay, right? You should feel magic, you should feel grateful, and you should while recalling those moments of your childhood, you should feel thankful with every instance of your life. The kids that we have here, it's okay, अभी तक आपका जो चाइल्डहुड गुजरा है उस टाइम अभी तक आपको आपके लाइफ में जिसने भी आपके लिए पे किया है, जितना भी आपको मनी मिला है, you can be grateful for that. And the older people here, you can recall the memories of your childhood when you got things for no charge. Then you have to take a small dollar bill, that is any rupees,
Okay, and you need to write on a sticker. You need to write it on the sticker. Thank you for all the money I've been given throughout my life, and you need to stick that sticker on that rupees. Okay. Then you need to take your magic dollar bill with you today, at least once in the morning and once in the afternoon. And as these are the compulsory ones. एक बार morning में लेना और एक बार afternoon में लेना है. But you can also take it as many times you want and hold it in your hand. And you need to read the words that you have written on it and truly feel the abundance of money that you have got till now. And just before you go to sleep, you have to hold the magic rock in your hand, and you need to thank the best thing that happened to you during that day. Okay, so this was the magic chapter for today. If anybody has any doubts regarding this chapter or any previous chapter that we've already done, you may ask. I wanted to ask one thing. If we have $1, Yeah. then can we stick on that? Yeah, you can take dollar also. If you don't have it, then I told you ki you can take rupees. Thank you. Ashwika, any rupee or the 100 rupees note only? 100 rupees note I told because purple is a lucky color in regard to financially and regard to money. But if you don't want to take the 100 rupee note, you can take any note that is good. But I just gave you an option which I prefer more. Okay, thank you. Hi Ashwika, I wanted to ask that note that we have, should we keep it in the purse and just take it out twice a day, or should we keep it in the open? You can keep it in your purse also if you are comfortable, or else you can stick it on your inside your almirah or any wall that you have in your room, or you can place it on the softboard or anything also. That's totally up to you. You just need to place it where you will know that you will frequently see that paper or that dollar bill. Okay. Ma'am, I see my homework. Okay, I saw your homework. It was very nice. You posted on the... Wow, very nice. You post it on the group if you want to. The group which we have, you can post it on it. Okay, ma'am. Music. Okay, does anybody has anything else to ask? I would just like to share one thing in between the session when you were saying about the childhood. Now, when you recall, you feel that you got so much, means right from the time you took birth up till today, like the time you start earning. So that was really nice. I mean, पता तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होता, but sometimes when somebody else tells you that you need, जो भी questions थे वहाँ पे कि आपको ये भी मिला क्या, ये भी मिला क्या, तो तब पता चलता है कि you had so much. मतलब you were not like when as kids you try to compare sometimes कि उसके पास like I have just seen like आजकल के बच्चे जो करते हैं कि उसके पास वो है या ये है, तो हमने कभी चाइल्डहुड में ऐसे कंपेयर नहीं किया, लेकिन आज जब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है ओके फाइन, वी आल्सो हैड सो मच टू बी थैंकफुल फॉर. Okay, thank you so much for sharing. Thank you. Would anyone else like to share something? We still have 2 minutes. Please feel free to share. Only if you will share with, you will have a much deeper understanding. Really getting from the childhood, children thinks that is their right, they got it. But the parents has to do this. But studying this, they understand that this is not just the right. You should be thankful for that. See, वही जैसे बोला ना, gratitude is richness.
जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड रखेंगे उतना ही वो चीज आपके पास और आएगी. And when you are in gratitude, then it will become like your birthright only. But you have to be in gratitude for that birth also. If your parents have given you birth, you have to be in gratitude for that. You have to be in gratitude for everything that they give us. हम लोग क्या होता है ना, जो चीज मम्मी नहीं लाई या पापा नहीं लाई उसके लिए तो गुस्सा हो जाते हैं कि आपने ये नहीं लिया, आपने ये नहीं किया. पर क्या जो चीज वो देते हैं या जो लाते हैं, क्या उसके लिए हम लोग उनको पहले थैंक यू बोलते हैं? मम्मा रोज आपके लिए खाना बनाती है, पापा आपके लिए चीजें लेकर आते हैं, तो वी शुड बी इन ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दे डू. यू नो, आप लोगों को पता चलेगा अब्रॉड में, फॉरेन में, अभी जैसे आप लोगों की पढ़ाई का भी सारा मनी, एवरीथिंग योर पेरेंट्स आर गिविंग. अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है. फॉरेन में आप लोगों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई का भी खर्चा या तो स्टेट देती है या आफ्टर अ सर्टेन एज आपको खुद देना पड़ता है. Your parents will not give it to you. You will have to buy your own house. You will have to get married on your own. यहाँ पे इंडिया में you should be feel very, very lucky and blessed. You have such wonderful parents that they are doing everything for you. But abroad में ऐसा नहीं है. I have a friend of mine जिसकी daughter जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनकी daughter is around 12 years old now. And उनके son is 21 now. But like उनकी daughter has started earning her own pocket money. And unka son, after he was around 18, he has started, you know, like preparing to build his own house. क्योंकि वहाँ इतने जल्दी बच्चों को भी वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ जाती है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत कर रहे हैं. तो आप जब उस ग्रेटिट्यूड में आओगे तब आप देखेंगे आपको चीज और मिलेगी. अगर आप अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देते हो और अगर वो थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, तब नेक्स्ट टाइम आपका मन करेगा ना उसको और अच्छा गिफ्ट देने के लिए. लेकिन मान लो आपने उसको पैक करके एक सुंदर सा गिफ्ट दिया और उसने ले जाके रख दिया बगल में कि हाँ ठीक है, तो क्या नेक्स्ट टाइम से आपका मन करेगा उसको देने के लिए? ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ है. ये मत सोचिए कि हमारे पेरेंट्स हम लोग को देते ही है तो उनको देना ही चाहिए. लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड, यू नो, लाइक दे हैव टू डू. उन्होंने आपको बर्थ भी दिया है so it is because you wanted to come on this earth. So you should be in gratitude कि you know उन्होंने अपनी बॉडी से आपको इस दुनिया में लेकर आए. और when you will have the gratitude, आप देखोगे कि जितनी अच्छी चीजें आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं वो और करेंगे. आप अगर वो एक गिफ्ट देते हैं, आप उनको एक बार थैंक यू बोलिए, देखिए नेक्स्ट दिन वो अपने आप आपके लिए 4 गिफ्ट और ले आएंगे. सो प्लीज टुडे एटलीस्ट. अच्छा, मुझे लेट मी आस्क द किड्स हियर, कौन कौन यहाँ पे अपने पेरेंट्स को दिन में एक बार, सिर्फ एक बार एटलीस्ट थैंक यू बोलता है? ये याद करिए कि लास्ट टाइम आपने अपने पेरेंट्स को कब थैंक यू बोला था. देवोष्मिता, यू से थैंक यू एवरी डे? No, ma'am. Sometimes I say my father and mother, when my father gives me many times. Yeah, but you say sometimes. But do you know that your mummy and papa do so much to give you things every day? The food that you eat, the house that you live in, the studies that you are doing, it is all because of the money that your parents are spending on you. So, you know, you should be thankful to your parents every day. Whenever you eat food, thank God and thank your parents. Your mama must be cooking, or even if your cook is cooking, then your mama and papa are paying for that cook. So you should be in gratitude for your parents every day. Please tell your parents thank you at least once a day. वो लोग दिन में इतना कुछ आपके लिए करते हैं, पर दिन में एटलीस्ट एक बार उनको रात को सोने के पहले चाहे give them a nice hug and tell them thank you mama for making my entire day so nice and special. Thank you papa for doing so many things for me. पूरे दिन में सिर्फ एक बार थैंक यू जरूर बोलिए, ठीक है? So will you do it every day, Devoshmita? Okay. Great, lovely. And probably that goes for all of us. और you know, maybe कितने हम लोग हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अब नहीं रह रहे हैं, we got married, we are working elsewhere, but at least हम लोग उनको मन से तो उनको रोज थैंक यू कर सकते हैं ना. So if we make this a habit that we are saying thank you to our parents, starting with our parents,
फर्स्ट आप ये बात याद रखिए कि आपका कनेक्शन इस दुनिया से सबसे पहले आपके पेरेंट्स के थ्रू बना। तो सबसे पहले अगर हम लोग हर चीज में अपने पेरेंट्स को याद रखेंगे ना, तो आप देखेंगे बाकी सब चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस हो जाएंगी. So let us at least start saying thank you to our parents first for everything, for the beautiful relationships, your money. आप देखेंगे everything will start improving. ठीक है? Anyone else? Anyone would like to share? कुछ कहना चाहेंगे कोई भी? Please feel free to. Kashvi, how are you finding the class? Yes. Are you doing the activities every day? I got the rock today because I didn't have the rock. I will do the rock. Which what are you saying? I'll do the rock. She got the rock today. Okay, you've got the document today. But are you writing the 10 things that you are grateful for every day? Yes. So what have you written today? Let me see. Read out what you've written today. I have written, I'm grateful to the teachers, to the doctors, to the shops which are open, for the rain, for the farmers, for the sun, for the thunder, for the body, for the. I've just written this much. Lovely, lovely, Kashvi. Please put your gratitude list in the group. So that क्या होगा ना, वो ग्रुप पे डालने के चक्कर में एक तो ये हो जाएगा कि आपको हो जाएगा कि मुझे रोज लिखना है. And when you read it on the group ना, you know आप खुद तो अच्छा कर ही रहे हो अपने साथ, बाकी भी जो रीड करते हैं ना उनका भी gratitude हो जाता है अपने आप. So you will also do a very good work, good deed by sharing it in the group. So I request all of you to please share your gratitude list every morning. And please remember to hold your rock and remember your best moment of the day and be very happy and tell your rock what you're happy for. Do these two things without any faith. और फिर जो हमारे एक्टिविटीज है एवरी डे के, वो एक एक एक्टिविटी आपको रोज करनी है. सो प्लीज डू दैट. जिन लोगों ने अपना हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं बनाया है, प्लीज आज जरूर से बनाइए. प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप सो दैट वी नो दैट यू मेड इट. सी वी आर इट इज फॉर योर ओन गुड. पर आप जितना शेयरिंग करेंगे, जितना आप करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा. I'm not added to the group. Okay, I will add you to the group. Beta, share, give me a call. So I'll have your number and I'll add you to the group. If there is anyone here who is not added to the group, please, I am typing my number here on the chat. Please give me a missed call or please talk to me and I'm going to add you all to the group. And there is one thing. Please feel free to share this link with anyone whom you feel that needs to make their life magical. Feel free to share it with your parents, अपने मम्मी पापा, जो भी आपको लगता है, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, जिसको आपको लगता है कि जिन लोग को अपनी लाइफ मैजिकल बनानी चाहिए, प्लीज आस्क देम ऑल टू डू दीज एक्टिविटीज विद यू. मेक देम डू इट विद यू सो दैट उनकी भी लाइफ मैजिकल हो जाएगी. ठीक है? Okay. So shall we close the session? Okay. Ashvika, would you like to end with a nice song? Can we share a nice song? Yeah, we can share a nice song. And just before that, I just want everyone to just join their hands for 2 seconds and just right now close their eyes and be thankful for all the money they've got till now in their life. Just for 2 seconds, just quickly be thankful.
Thank you, friends. Thank you, Thank Ashvika, you. for being such a Thank lovely you, session. Ashvika. Thank you, everyone, for joining in. Thank you for Thank you, joining us. Brijlata ji. Thank you, Deboshmita. Thank you, Thank you, Ashvika. madam. Bye. Bye-bye. Thanks a Bye. lot. Thank you, You making everyone. study this book. Yes? Thank you making the study this book. Love you. Okay. See you all Bye. tomorrow, friends. Bye.